الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. آج کے اس پروگرام میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پھول جو تو اپنی جگہ نور و نکھت کا مصدر اور انوار و تجلیات کا جامعہ ہے، لیکن ہمارا موضوع اس ہستی کا تذکرہ ہے جو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار صحبت سے اکتساب کرتی رہی، بلکہ رہتی دنیا تک اس فیضان نبوی کے فیوزات کی قاسم و مختار ہیں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء کی تصویر، مالک ردائے تطہیر، چمن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار، عفت و عظمت کا در شاہ سوار، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کی والدہ خاتون اول ہیں، وہ فاطمہ جن کے بابا سید الانبیاء ہیں، وہ فاطمہ جن کے شوہر سید الاولیاء، جن کے شہزادے سید الشہداء، اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشہ رسول ہیں اور حضور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور سب سے لاڈلی شہزادی ہیں. آپ کا نام فاطمہ، آپ کا لقب ظاہرہ اور بطول ہے. اور امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس بیٹی کا نام یعنی فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت، رنگ و روپ اور بات چیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان کی تعظیم کے لیے قیام فرماتی اور اپنے ابا جان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دے کر تھام لیتی اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ جن کی رفتار، جن کی گفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور گفتار کے مشابہ، جن کی سیرت، جن کی صورت اور جن کا کردار
सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा, जिनकी खलवत और जलवत हुजूर अलैहिस्सलाम की खलवत और जलवत के मुशाबा, उस तस्वीर तहारत पे लाखों सलाम। हजरत मुस्वर बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बस जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। रुतबा है सबसे अरफा व आला बतूल का, आखिर रसूल पाक है दुल्हा बतूल का। नबियों के ताजदार की बेटी बतूल है, वलियों का ताजदार है बेटा बतूल का। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपको आते हुए देखते तो उन्हें खुशामदीद कहते और खड़े हो जाते, बोसा देते, हाथ पकड़ लाते, अपनी नशिस्त पर बैठा लेते। सैयदा फातिमा हुजूर अलैहिस्सलाम को जब अपनी तरफ तशरीफ लाते देखती तो खुशामदीद कहती, फिर खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देती। कि मैंने 2 से 3 अहादीस एक जैसी अलग अलग रावियों से कोट की ताकि पता चल जाए कि सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा आपका मुकाम क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अली, फातिमा, हसन हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले सब कयामत के दिन एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे और कयामत के दिन हमारा खाना पीना भी इकट्ठा होगा, यहाँ तक के लोगों में फैसले कर दिए जाएंगे। कितनी बुलंदियों पे है अनवारे पंजतन, हमसे ना पूछिए दरे खैबर से पूछिए। दस्ते खुदा का दस्त खुदा के जोर का कैसे हो फैसला, ये तो बतूल पाक की चादर से पूछिए। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता जो इस रात से पहले कभी जमीन पर न उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने की इजाजत दी जाए और मुझे खुशखबरी देकर मेरी लफ्ते जिगर फातिमा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है और मेरे बेटे यानी हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यानी ये फरिश्ते ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी और वो फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, पहले कभी नहीं मैंने देखा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने काम से वापस आकर हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ चल दिए। दरवाजा खटखटाया तो हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने पूछा कि कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा उठिए और दरवाजा खोलिए, ये वो है जिनसे अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और ये भी उससे मोहब्बत करते हैं। जब हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर प्यारा है। यानी वो कौन थे? वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, आपके सामने बैठ गए। यानी इस अंदाज से बैठे कि कोई आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हया का पर्दा हायल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने चचा और चची फातिमा बिनते असद से लिया। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे अदब सिखाया, मुझे शाइस्ता बनाया, मेरी तरबियत की और माँ बाप से बढ़कर शफकत व एहसान फरमाया। अल्लाह ताला ने आपके जरिए मुझे हिदायत अता की। तो असल मकसद बयान करने से शर्मा रहे थे, लेकिन फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजरें झुकाते हुए अर्ज किया, हुजूर मैं चाहता हूँ मेरा भी एक घर हो, बीवी हो जिसमें मैं चैन हासिल करूं और
मैं आपके लिए आपकी बारगाह में आपकी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी और मुसर्रत से खिल उठा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, अली तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे फातिमा का हक मेहर अदा कर सको? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर मेरी हालत तो आपसे पोशीदा नहीं, आपको मालूम है कि मेरे पास सिर्फ एक ज़रा है, तलवार है और पानी भरने के लिए एक ऊंट के सिवा कुछ नहीं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे और सफर में भी ये तुम्हारे काम आएगा, लिहाजा इसको भी नहीं। लेकिन हाँ, जो ज़रा है उसके बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर देता हूँ। हक मेहर के तौर पर ज़रा जो है वो तुम हक मेहर के तौर पर दे देना। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए और हजरत सैयदा खातून जन्नत का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया गया। और उस वक्त जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत सैयदा खातून जन्नत का निकाह हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आसमानी फरिश्ता आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे कई चेहरे और पर, और उसने आकर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम हो और आपको मुबारक मिलन और पाकीज़ा नस्ल की बशारत हो। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम अर्ज किया। आप फरमाते हैं कि मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने दुनिया पर नजर रहमत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हबीब भाई और दोस्त को मुंतखब फरमाकर उसके साथ आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौक़े इबादत इस कदर कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने देखा कि मेरी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर की मस्जिद के मेहराब में रात भर आप इबादत में मसरूफ रहा करती थी, यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती। सर्दियों की लंबी लंबी रात और सैयदा खातून जन्नत का सजदा मुकम्मल नहीं होता। एक रात तो सैयदा रो पड़ी, अल्लाह ताला तूने इतनी छोटी रातें बनाई, एक रात तो इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोलकर तेरी इबादत कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत सैयदा खातून जन्नत पर इतना प्यार आ गया, फरमाया वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो लोग जो सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में कभी सजदे की हालत है, कभी कयाम की हालत है, रात खत्म हो जाती है उनका एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत को इस कदर इबादत का ज़ौक़ था कि पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में गुजार देती थी। और ये अल्लाह ताला से हजरत सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत थी। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम न सिर्फ फराइज बल्कि सुन्नत और नवाफिल की अदायगी को अपना मामूल बना लें। हजरत सैयदतुना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का मुताला करने से पता चलता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमूरे खानादारी को भी खुद अंजाम दिया करती थी और कभी किसी रिश्तेदार और हमसाई को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाती थी, न काम की कसरत, न किसी मेहनत और मुशक्कत से घबराती थी और सारी उम्र शोहर के सामने कभी हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाई और ना ही उनसे किसी चीज की फरमाइश की। खाने का उसूल ये था कि चाहे खुद फाके से हो, जब तक शोहर और बच्चों को ना खिला लेती खुद एक लुकमा भी मुंह में न डालती। घर के काम काज खुद अपने हाथों से करना सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सुन्नत मुबारका है। हमें भी चाहिए कि हम अपने घर के काम काज खुद करें। अगर खवातीन अपने घर के काम काज खुद करेंगी तो घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। और अपने शोहर के सौंपे हुए काम खुद करें, अपनी सास और ससुर के काम
जो है वो भी खुद करें, घर का माहौल खुशगवार रहेगा, खुद भी तंदुरुस्त और तवाना होंगे। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, आप हमारी हयात शरीफा में तैयबा, ताहिरा और साबिरा है, ऐसे ही हमारी वफात के बाद भी आपने तैयबा, ताहिरा, साबिरा रहना है और आपके पाए इस्तिकलाल में जुम्बिश ना आने पाए। सैयदा खातून जन्नत ने अमल करके दिखा दिया, रोना सब्र के खिलाफ नहीं, रोना पीटना, ये पीटना सब्र के खिलाफ है। तो हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी शहजादी को जन्नत के लोगों की बीवियों या मोमिनों की बीवियों की सरदार होने की बशारत दी। अल्लाहु अकबर। अल्फाज दम तोड़ देते हैं, कलम टूट जाते हैं, स्याहियां खुश्क हो जाती हैं, तसव्वुरात बिखर जाते हैं, तखय्युलात टूट जाते हैं, इल्मे कलाम शशदर रह जाता है, बयान खत्म हो जाते हैं, जबान गुंग हो जाती है, मगर सैयदा की अजमत और शान शे बयान नहीं होती। क्योंकि इफ्फत का दुर्रे नेहा है तो फातिमा, इफ्फत का गंजे दरा है तो फातिमा, करम का बहरे बेकरा है तो फातिमा, नबी की रूहे रवा है तो फातिमा। सुबहान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा के क्या कहने। हजरत सैयदा खातून जन्नत खुद अपने हाथ से चक्की चलाया करती, और एक बार तो ऐसा हुआ, सारी सारी रात इबादत में मसरूफ रहने वाली सैयदा खातून जन्नत, आपकी आंख लग गई, आप सो गई, घर के काम करने वाले पड़े हैं और बच्चे भी सो रहे हैं, तो सैयदा की आंख लगी, चक्की चलाने वाली पड़ी, घर का सारा काम करने वाला पड़ा। अल्लाह ताला का फरमान हुआ है, जिब्रील आज कुछ मर्तबा हासिल करना है तो जाओ मेरे महबूब की शहजादी के घर में चले जाओ, चक्की चलाने वाली है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सैयदा खातून जन्नत के घर में तशरीफ ले आए, घर का सारा काम किया, फख्र महसूस किया हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने, और चक्की चलाई, बच्चों का झूला झुलाया। यानी सैयदा का दरे दौलत वो दर है कि जिसकी दरबानी करने में भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी फरिश्तों के सरदार फख्र महसूस करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक और अहम तरीन बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था, तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप भी अपने अब्बा जान को देखते हुए उम्मत के लिए फिक्रमंद रहती। एक बार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की दावत दी, तो जितने कदम चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी के घर में तशरीफ ले गए। हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के बदले में एक एक ऊंट कुर्बान कर दिया, और जब ये बात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा खातून जन्नत को बताई, तो हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ए अली जाएं, आप मेरे अब्बा जान से कहते हैं कि कल आपकी दावत आपकी बेटी फातिमा के घर में है। घर में फाके थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मानी खेज नजरों से हजरत सैयदा खातून जन्नत को देखा, लेकिन कोई आर्गुमेंट्स नहीं किए, सीधा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, हुजूर के पास सहाबा भी बैठे हुए थे, करीब जाकर बड़ी आहिस्तगी से कहा, हुजूर कल आपकी दावत आपकी बेटी फातिमा के घर है। इतना कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा खुशी से तिमतिमाने लगा, मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, इरशाद फरमाया, सहाबियों तुम सबकी दावत कल मेरी बेटी फातिमा के घर में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से घर आए, और हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको बताया कि वो तो मैंने तो हुजूर के कान में ये बात कही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। तो
सैयदा खातून जन्नत फरमाने लगी कि फिर दावत देने वाला यानी खिलाने वाला जाने या खाने वाले, तो हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है। जब रात हुई, सब सो गए, सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में जाए नमाज बिछाई, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो गई। मौला तुझे तो फातिमा के हालात बहुत अच्छी तरह पता है, फातिमा के घर में फाके है, ए अल्लाह कल की दावत का तू ही कोई बंदोबस्त कर दे। सारी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हुए गिरे उसारी करती रही, आखिरी पहर था, कबूलियत हुई, अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, ए जिब्रील मेरी जन्नत और जन्नत की नेमतें किस लिए कि आज मेरे महबूब की बेटी रो रही है। जिब्रील जाओ, आज सारे जन्नती खाने ले जाओ और खुशखबरी सुना दो कि दावत का एहतमाम आज अल्लाह ताला की तरफ से कर दिया गया, आज मेहमानों को जन्नती खाना खिलाया जाएगा। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। उधर जब सहाबा कराम आए, खाने की खुशबुएं उठ रही थी, सहाबा एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसी खुशबू कभी सूंघने में नहीं आई। और जब सहाबा खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबियों तुम्हें मालूम है कि आज ये खाना तुम्हारे लिए कहाँ से आया है? सहाबा हैरत से देख रहे थे, अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबियों आज ये खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उधर सहाबा खाना तनावुल फरमा रहे थे, उधर सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अल्लाह ताला की बारगाह में आपने सजदा रेज़ी इख्तियार कर ली और अल्लाह की बारगाह में रोते हुए अर्ज किया, अल्लाह ताला उस्माने गनी ने मेरे अब्बा जान के हर कदम के बदले में एक एक ऊंट कुर्बान किया। अल्लाह ताला तुझे फातिमा के हालात मालूम है, आज फातिमा खाली हाथ है, लेकिन ए अल्लाह मेरे अब्बा जान के एक एक कदम के बदले एक एक उम्मती की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ कि ए जिब्रील जाके मेरे महबूब को बता दो, मैं फातिमा का रब हूँ, मैं फातिमा से ज्यादा सखी हूँ। फातिमा ने आपके एक एक कदम के बदले एक एक उम्मती का सवाल किया है, मैं रब होकर फातिमा के एक एक कदम के बदले एक एक हजार उम्मती की मगफिरत फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने एक एक कदम के बदले एक एक हजार उम्मती की मगफिरत का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ये सैयदा खातून जन्नत तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सीरत तैयबा का एक नुमाया पहलू था जो आपके सामने रखा। हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी विसाल के बाद सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गम का बड़ा गलबा था। इतना गलबा था कि आपके लबों की मुस्कुराहट ही खत्म हो गई और तकरीबन थोड़ा अरसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हयात रही और बहुत कभी नहीं मुस्कुराई थी। बस एक बार देखा गया कि आपके लबों पर मुस्कुराहट आई, वो भी वाकया इस तरह से कि हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको ये तशवीश थी कि उम्र भर तो गैर मर्दों की नजरों से खुद को बचा के रखा, अब कहीं वफात हो जाए तो मेरी कफन पोश लाश पर लोगों की नजर न पड़ जाए। हालांकि एक और बात अर्ज कर दूं कि सैयदा खातून जन्नत आप वो है कि आपकी रूह खुद रब्बे कायनात ने कब्ज फरमाई और आपको किसी ने गुस्ल नहीं दिया। हजरत उम्मे सलमा को फरमाया कि मैंने नया लिबास पहन लिया, मैंने गुस्ल कर लिया है और अब मुझे गुस्ल देने की जरूरत नहीं, मैंने नया लिबास भी पहन लिया है और हाँ मेरे कमरे से चले जाएं, अब मेरा आखिरी वक्त है। तो लिहाजा ये मेरी और अल्लाह ताला के दरमियान रासो न्यास है। सबको अपने कमरे से भेज दिया। खुद सैयदा खातून जन्नत अपने घर के कमरे में बिल्कुल तन्हा थी और अंदर से कुछ राजो न्याज की सरगोशी की तरह आवाजें आ रही थी। लेकिन क्या है कि थोड़ी देर बाद ये आवाजें रुक गईं और जब आपने दरवाजा खोला, आगे बढ़कर देखा तो सैयदा का विसाल हो चुका था।
اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود غسل فرما لیا تھا، خود نیا لباس پہن لیا تھا، اور وفات سے پہلے آپ کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ آپ کے جسم اقدس پر، کفن پوش جسم اقدس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ خوش ہو گئیں، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے پہلے 2 وصیتیں فرمائی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس وصیت پر عمل کیا، اور یہ نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے اہتمام سے ہوا، اور فرمایا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب فرماتے حضرت سیدہ خاتون جنت کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر اپنے پردے کا خیال تھا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔